Missed buying a BS4 car and still looking to buy one? Hi, I am Akash Lohani, co-founder CarKideal.com. I'm doing this video for the second time on BS4 cars. The first video I shot was on 14th of March 2020 in association with My Car Helpline. And if anyone of you who might have seen that video got an overwhelming response and 1,50,000 views as of now on the YouTube channel. You can see the link has been provided in the description. And seeing the response from across the country, and still people call me up every day regarding the inquiry regarding their requirement for BS4 cars. I thought I should share this video again to update the latest trend and update the latest things going on in the market. The points we will cover today is there is a new segment which has been introduced recently in this current scenario. Since you are all aware that BS4 cars registration was stopped by the Supreme Court, and the last date to get those cars registered was 31st of March. After the extension, they got a second deadline of 30th April, and after that the cars cannot be registered anywhere across India. So there was no option left with the dealers to get those cars registered in their name and or in their employee's name. That ways they had to get it registered, and for all unsold stock, all unsold inventory across India has been registered in some or the other name with the dealership. So अगर अभी भी आपने BS4 कार नहीं खरीदी और आप खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों अभी भी उम्मीद बाकी है. Still you can buy your dream car. And now the new category that has been introduced now is second hand brand new car. This is the new category. This is the new terminology, you can say, that has been introduced now. Second hand brand new cars. What does this means? Second hand brand new cars are those cars which are not yet delivered from the showroom. They are not yet delivered from the showroom. Nobody has bought it yet, but those cars are already registered, which means you would be the second owner of the car. It's that simple. आप अब अभी खरीद रहे हो तो आप सेकंड ओनर हो गए. वो कार सिंस की वो BS4 कार थी, तो उसको डीलरशिप ने, जहाँ की भी वो डीलरशिप हो, दिल्ली की हो, मुंबई की हो, हैदराबाद की हो, गुजरात की हो, कर्नाटका की हो, बेंगलोर की हो, जहाँ की भी डीलरशिप थी, वो उन लोगों ने वो BS4 कार्स का जो स्टॉक है वो अपने नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे, अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स और एम्प्लॉइज के नाम पे वो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड कर ली हैं. अब ये एक बहुत अच्छा मौका है, अगर आपने अभी तक ये BS4 कार नहीं खरीदी पाए किसी वजह से, या डिले डिसीजन हुआ या जो भी है, तो दिस इज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाई वन नाउ. अभी चलो ये बात तो हो गई कि ये ऐसी कार्स अभी अवेलेबल हैं मार्केट में, बट ये खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर खरीदते हैं तो उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, मतलब आपको वो चीज़ सूट करती है कि नहीं करती. तो मैं आपको उसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स दोनों बताता हूँ. आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या सूट करता है. अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए जाना चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम to call us. Numbers we will share in the description box. We have a huge inventory and we are updating it every day. We are getting calls from all dealers across the country who are sharing their stocks with us, and जो भी स्टॉक हमारे पास है वो हम आपको बताएंगे. अगर आप अभी भी कार नहीं खरीद सके और आप खरीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें बताएं. We would like to help you out to own your dream car. Now अब हम बात करते हैं कि अगर ये कार हम खरीदते हैं तो हमें खरीदनी चाहिए कि नहीं. सबसे पहले आपकी अवेयरनेस के लिए आपको मैं बता दूं कि आप इस कार मतलब ओनरशिप जो आपकी होगी वो आप सेकंड ओनर होंगे, क्योंकि फर्स्ट ओनर तो डीलरशिप होगी या जिसके नाम से भी उन्होंने कार को रजिस्टर्ड कराया होगा, फर्स्ट ओनर तो वो होंगे, तो आप सेकंड ओनर होंगे. चलो, एक तो ये बात हुई. दूसरी बात कि जो इंश्योरेंस है गाड़ी का वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो इंश्योरेंस, क्योंकि वो नॉर्मली वो गाड़ी मार्च के महीने में रजिस्टर्ड हुई होगी, 30 मार्च को रजिस्टर्ड हुई होगी या 30 अप्रैल, मैक्सिमम 30 अप्रैल
से पहले रजिस्टर्ड हुई होगी। तो अगर आप वो कार जून में ले रहे हो तो आपको 3 महीने की कम इंश्योरेंस मिलती है, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग आपको सिर्फ 9 महीने की इंश्योरेंस मिलती है। जबकि अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो आपको पूरे साल की इंश्योरेंस मिलती है। फिर आपको एक चीज़ और देखनी है कि वो इंश्योरेंस जो आपको मिल रही है उसका प्लान क्या है, मतलब क्योंकि डीलरशिप ने ये पैसा खुद बेयर किया है, तो हो सकता है कि उन्होंने कोई नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करी हो, या वो हो सकता है कि कोई मतलब नॉर्मल जीरो डेप इंश्योरेंस करी हो, ऑल इन वन प्लान या प्लान विथ RTI, या जिसमें हम कंज्यूमेबल्स, टायर्स, इंजन, हाइड्रोस्टैटिक और की रिप्लेसमेंट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी एडेड इन इंश्योरेंस, बंडल्ड प्लान होता है। तो वो प्लान हो सकता है उन्होंने ना लिया हो, तो आपको ये प्लान देखना है कि वो डीलरशिप ने किस प्लान की इंश्योरेंस वो आपको दे रहे हैं कार के साथ। दूसरी बात कि RC और इंश्योरेंस, जब भी आप ऐसी कोई ब्रांड न्यू रजिस्टर्ड कार शोरूम से लें तो इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि आप वो इंश्योरेंस अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं और रजिस्ट्रेशन भी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे कल को आप कार चला रहे हैं, आप कार के ओनर हैं, बट वो कार अगर आपके नाम से नहीं है तो आपको कोई इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा, एंड इट विल बी मतलब यू कैन बी इन ए प्रॉब्लम। सो आप इस चीज़ को जरूर इंश्योर करें कि आप ये इंश्योरेंस और RC दोनों अपने नाम पे रजिस्टर करा लें। दूसरी चीज़ कि सिंस कि आप ये ब्रांड न्यू कार ले रहे हो बट स्टिल इट इज़ द सेकेंड हैंड कार्स, तो बैंक इसको यूज्ड कार ही कंसिडर करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। मतलब जैसे न्यू कार का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आज के मार्केट सिनेरियो में 8.5 से 9% का है, बट यूज्ड कार का जो लोन है वो कम से कम 11, 11.5, 12%, इवन 13% पे भी होता है। तो मैं मतलब मोटा मोटी अगर हम ये मान कर चलें कि नई गाड़ी का लोन 9% पे और यूज्ड कार का लोन 11% पे होता है, तब भी 2% का तो डिफरेंस है ही है। 2 से 3% का डिफरेंस है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 से 3% का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस को अगर हम फाइनेंशियली कैलकुलेट करें तो ये 100 से 120 रुपये पर लाख पर मंथ का डिफरेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है किसी कार पे, तो आपकी 5 साल की EMI जो है वो 20,500 की आती है। और अगर वही आप 10 लाख का लोन किसी यूज्ड कार पे, जैसे ये मैं बता रहा हूँ अनरजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड यूज्ड कार जो कि ब्रांड न्यू कार है, बट आप रजिस्टर्ड यूज्ड कार ले रहे हो, अब BS4 कार है इसलिए, तो उसका लोन बैंक आपको कम से कम 11, 11.5% पे करेंगी, इससे नीचे नहीं करेंगी। तो उसमें आपकी जो EMI है उसका फर्क लगभग 2,000 रुपये पर मंथ का आता है। अगर आप 60 महीने का लोन लेते हैं 10 लाख के पीछे, तो 1,20,000 का फर्क हो गया। 20 लाख का अप्रॉक्सीमेटली हम 1 लाख मान लेते हैं इसको। अगर आपने 20 लाख का लोन लिया तो 2 लाख का फर्क हो गया, 30 लाख का लिया तो 3 लाख का हो गया, 40 लाख का लिया तो 40 लाख का 4 लाख का हो गया, एंड सो ऑन। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आप अगर ये कार लेते हो तो आप हर 10 लाख के पीछे 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। चौथी बात आपको देखनी है कि आप ये कार रजिस्टर्ड कहाँ है। जैसे अगर दिल्ली का डीलर है तो उसने दिल्ली में करा होगा, गुड़गांव का डीलर है तो उसने हरियाणा नंबर लिया होगा, यूपी का डीलर है तो उसने यूपी में रजिस्टर्ड कराई होगी। इसी तरह बेंगलोर का डीलर है तो उसने वहाँ की लोकल रजिस्ट्रेशन कराई होगी, मुंबई का डीलर है तो मुंबई में कराई होगी, गुजरात का डीलर है तो गुजरात में कराई होगी। तो आपको ये देखना है कि वो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ का है, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक पे बहुत ज़्यादा स्टॉक तो है नहीं, मतलब कोई 100-200 गाड़ियाँ होंगी। तो उसमें आपको सपोज करो आप कोई एक पर्टिकुलर कार देख रहे हो, आप सपोज करो BMW की 5 सीरीज देख रहे हो, या BMW X1 देख रहे हो, या मर्सिडीज की C क्लास देख रहे हो, या कोई भी XYZ कुछ भी, मतलब जो भी कार आप देख रहे हो, वो कार आपको सबसे पहली बात तो ऐसी मिलती है कि नहीं मिलती। अगर मिलती है तो वो किस स्टेट से मिलती है, कहाँ का नंबर है, वो आप अपने स्टेट में चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स वेयर की आप दूसरे स्टेट्स की गाड़ियाँ वो चलने नहीं देते। जैसे मोस्टली साउथ इंडिया में ऐसा है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, मतलब इन जगहों पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बाहर के नंबर्स की गाड़ी नहीं चलाने देते, वो चलान करते हैं। तो देयर इज़ नो फन कि आपने अभी तो परचेज कर लिया और बाद में आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाए, या आप चलान पे कर रहे हो, या आप उसको री रजिस्टर्ड करा रहे हो, तो इट विल बी अ कॉस्ट फॉर यू। सो यू हैव टू चेक कि आप जहाँ पे रहते हैं आपको वहाँ का नंबर अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो आपके लिए वो मतलब आप उसको यूज़ अपने स्टेट में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं।
और इसके बाद एक चीज़ है कि आपको रीसेल वैल्यू कार का जो है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सिंस कि आप उसके सेकंड ओनर होंगे अभी, तो जब आप कार सेल आउट करेंगे 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वॉटेवर 4 साल के बाद, तो जिसको भी आप देंगे वो थर्ड ओनर होगा। तो जो कार की रीसेल वैल्यू होती है उसमें बड़ा फर्क आता है इस चीज़ का। अगर आपने कोई नई गाड़ी ली होती और आप उसको बेच रहे होते तो उसकी बात अलग होती है, और आप सेकंड ओनर आप सेकंड ओनर, आप जिसको बेचोगे वो थर्ड ओनर होगा, तो वो प्राइस उसका डिफरेंस होता है एंड इट कैन गो अप टू डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट की कार लेते हो। जैसे कोई बड़ी गाड़ी है तो उसमें डिफरेंस 3 से 4 लाख का हो सकता है, छोटी गाड़ियों में 1.5 से 2 लाख का हो सकता है, मिड सेगमेंट की गाड़ी में 1.5-2 लाख हो सकता है, छोटी गाड़ियों में लाख रुपए हो सकता है। तो वो आपको डेप्रिसिएशन भी देखना चाहिए। एक तो अब ये 4 चीज़ें होंगी देखने वाली। एक तो इंश्योरेंस मतलब आपको कम मिल रही है, दूसरी कि वो किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है और आप अपने स्टेट में यूज़ कर सकते हो कि नहीं, तीसरा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप बैंक लोन के लिए जा रहे हो तो वो महंगे रेट पे आपको फाइनेंस करानी पड़ेगी, उसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। चौथा जो सबसे मतलब ज़रूरी है वो ये है कि आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी कल को उतनी नहीं मिलेगी। तो बिफोर डिसाइडिंग ऑन टू बाई दीज कार्स और नॉट, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस डील कि आपको अल्टीमेटली आपको कोई बेनिफिट मतलब आपको बेनिफिट है भी कि नहीं, मतलब आप जितने की आप कार परचेज कर रहे हो वो आपको उतने रिड्यूस रेट पे मिल रहा है कि नहीं, ताकि आप जब आप इसको रीसेल करो तो आपको वो सारे फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, तो लाइक अभी तक जो हम लोग गाड़ियाँ लेते थे, तो अभी तक जो कैटेगरीज होती थी वो या तो न्यू कार होती थी, यूज्ड कार होती थी, डेमो कार्स होती थी। डेमो कार्स वो कार्स होती हैं जो अनरजिस्टर्ड डिस्प्ले या टेस्ट ड्राइव कार्स होती हैं डीलरशिप्स की। तो अभी तक तो ये 3 गाड़ियाँ ही होती थी। हमें कोई कार चाहिए, हम या तो न्यू कार लेते हैं या यूज कार लेते हैं, या हम अनरजिस्टर्ड डेमो कार लेते थे शोरूम से जो उनकी टेस्ट ड्राइव या डिस्प्ले की कार्स थी। लेकिन अब ये चौथी कैटेगरी ब्रांड न्यू रजिस्टर्ड कार भी इंट्रोड्यूस हो गई है आज के मार्केट सिनेरियो में। सो दिस इज द न्यू थिंग एंड इफ इट ऑल सूट्स यू, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए जाना चाहिए तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आपको 60 लाख की चीज़ 40 लाख में मिल जाती है तो व्हाई नॉट, मतलब यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको प्रॉपर डेप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें आपको फैक्टर इन कर पा रहे हैं तो आप ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द डीलरशिप प्रिंसिपल गाइज एंड जो हमारे डीलर भाई हैं या जो कहीं से भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं, आपको किसी ने शेयर करा है या कुछ भी है, तो अगर आपके पास BS4 कार का स्टॉक है जो आपने रजिस्टर्ड कर रखा है और आप वो लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो आप अपना स्टॉक मुझे मेरे WhatsApp पे शेयर करें। हमारे पास ऐसे बहुत लाइक माइंडेड बायर्स हैं जो ये कार्स देख रहे हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर वी गॉट ए रिस्पॉन्स ऑफ अराउंड 2000 पीपल जो अभी भी हमसे बात कर रहे हैं। 400-500 लोग तो से तो चैटिंग हमारी रोज चलती है एंड कुछ लोगों ने उसमें से फाइनलाइज कर भी लिया है। तो मतलब मेरी सारे डीलरशिप प्रिंसिपल से डीलर्स जो भी मतलब हमारे ट्रेड से एसोसिएटेड हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पास इस तरह की कोई कार है जो उन्होंने रजिस्टर्ड कर रखी है अपने नाम पे और उसको वो लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ 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 अपना स्टॉक भेजिए। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। जो बायर्स जो कस्टमर्स हैं जो कार खरीदना चाहते हैं, उनको एक अच्छी चॉइस मिलेगी, मतलब वैरायटी ऑफ चॉइस मिलेगी। आपका स्टॉक बिकता है और हमारा क्या है, हम तो समाज सेवक हैं, हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं। मतलब हम तो मतलब इट इज़ ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। लाइक हम आपको बताएंगे कि भाई ये स्टॉक इस डीलरशिप पे है एंड आप इन केस यू वांट टू अवेल दैट, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। सो आज के लिए आई थिंक ये बहुत है। आप आगे भी हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी फेसबुक पेज पे आप लाइक करें। हमारे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। हमारे वेबसाइट पे आप लॉगिन करें www.carkedeal.com और इंस्टाग्राम, ट्विटर, वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारी प्रेजेंस है एंड hope to see you soon and
फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आप अगर चाहते हैं कि आप कुछ भी ना मिस करें, मतलब आप हर चीज़ से अपडेटेड रहें, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार हमेशा हमेशा हमें देते रहिए। थैंक यू।